Okay, good morning to all of you and welcome back to School Environment as usual. Now I think we've almost converted the home-based delivery to school-based delivery now. है ना? So, oh, some people are in the pipeline. Let me take them in. Dave and Bunch. Uh, this chapter has taken us a long time because it is a long chapter. And therefore, I just thought that, okay, let's do one thing. Let's take a small break. Break in this sense that let's start the chapter of gravitation now. Conceptually, the chapter is over as such, but yes, there are few questions which I would like to do and rather discuss. I mean, and that we will do in due course of time, maybe somewhere in the next week. है ना? आज क्या है? आज Wednesday है, तो maybe Monday कर लेते हैं, Monday, Tuesday. So one or two more classes are required for completing the entire chapter, and those we will do on Monday, Tuesday now. ठीक है? In fact, आज का जो क्लास है उसको मैं बोलूंगा स्टोरी क्लास. So today you can pack up your copies and pens and then let's keep them aside and maybe relax a little bit, chill, है ना? That's because today is more of a story class than a academic class where you have to do a little bit of notes and solving and so on. As I said, this chapter of rotation we are going to continue the next week. Two more classes are required actually. So that we will do in the next week. In the meanwhile, let's start the next chapter, and that is on gravitation. In fact, you know what? The story of this chapter, I will repeat, the story of this chapter is almost the story of physics in its modernity. I won't say modern physics really, because modern physics physicists have classified from the time we have started discovering things related to atoms, nucleus, and so on, and also the universe. So that's what is considered as modern physics. So I'm not going into that. I mean, I'm saying physics in its modernity. Okay, na? So what do I exactly mean? Well, Dev has already asked a question, that is, आज कुछ लिखना नहीं है ना? Well, एकदम बिल्कुल तो ऐसे नहीं कहूँगा, but yes, it's now story time. So maybe around 1/3 of the class तो कुछ नहीं लिखना है फिलहाल. Story में क्या लिखना है? Maybe just absorb the ideas of the story. ठीक है ना? So what I was saying was that this story of gravitation actually goes back, long back in fact. You know, the idea of gravitation is something which is very ancient. Okay, that there is attraction between all the particles of nature was of course concretely proposed first by Galileo. Okay, concretely, mind you, it was first proposed by Galileo. But if you look at pre-Galileo, there have been a lot of efforts in explaining what is there in the universe, because when it comes to physics, it was more of astronomy. It was more of astronomy in the earlier years. Astronomy as a subject, of course, did not exist in India, but Indians did have a lot of idea regarding planets. In fact, हम लोगों का जो ये सारा कैलेंडर है ना, एक तो लूनर कैलेंडर था, इंडिया में बात कर रहा हूँ, फिर सोलर कैलेंडर हुआ, so that was the transformation. I mean, not only that, quite a few of the events जो पूरे कैलेंडर में होता है पूरे साल का, they are based on planetary movements and also lunar positions. So therefore, और ये याद रखना कि ये जो कैलेंडर्स इंडिया में चलता था, they have been in vogue for the last 3,000-4,000 years. So therefore, planets के ऊपर interest, moon के ऊपर interest, human civilization का आज का नहीं है. It is like very ancient, at least recorded history में definitely more than 2,000 or 3,000 years. ठीक है ना? हाँ, physics in its modernity has taken shape because of some events shaped by famous people like Galileo and so on. ठीक है ना? So that we will discuss in a short while. But let me give you a little bit of history of this particular chapter. देखो, the study of solar system
has been, as I said, age old. Because there are some planets which are visible by the naked eye. You can see them. ठीक है ना? तो उनके ऊपर स्टडी, स्टार्स के और प्लैनेटरी पोजीशंस के स्टडी, मून के डिफरेंट फेजेस एंड पोजीशंस के स्टडी. तो ये सब जो है, अब मैं साइंटिस्ट नाम लूं या ना लूं, ये सब लोग करते आ रहे हैं काफी टाइम से. ठीक है ना? Even in India also, there have been famous people who have been involved in all these things. For example, Aryabhatta, Bhaskaracharya, and other people have been involved in various aspects of it. ठीक है ना? In fact, to some extent, rudiments of gravity was there even in Aryabhatta's thesis and all. But that was rudiments of it, not in a very concrete form. ठीक है? In fact, he was the one who proposed कि Earth is not the center. क्योंकि दुनिया में, मतलब दुनिया में इन द सेंस के अर्थ में लोगों का विश्वास ये था कि दुनिया का सेंटर अर्थ है और पूरा दुनिया अर्थ के अराउंड घूम रहा है. No, actually that is what we see. That is actually what we see because it is all relative motion that we see. तो हम लोगों के लिए क्या होता है ना, अर्थ सेंटर लगने लगता है और लगता है जैसे पूरा दुनिया हमारे अराउंड घूम रहा है. So there is nothing wrong in the observation as such, but of course there is something wrong in the interpretation. ठीक है ना? तो he only proposed, that is Aryabhatta, to an extent there was contribution from Bhaskaracharya also. They proposed that it's not the earth which is the center, but the sun which is the center, and earth and etc. are moving around it. Now this was further taken up by Copernicus. Now the interesting thing about Copernicus, oh वीडियो अटक रहा है, सुबह सुबह वीडियो अटकने लगा, अरे बाप रे. Anyway, good morning messages from Rishabh, Garv, Harshit. आदित्य says कि वीडियो अटक रहा है. सानिया says कि वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है. चलो anyway, लेकिन मैं एक्चुअली इस चैप्टर के थ्रू एक और थीम इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, and that is the struggle of science versus non-science, nonsense. ठीक है ना? तो the struggle has been eternal. The struggle of science versus, as I said, non-science has been eternal, and it has been so strong in the earlier years of science that you won't believe some of the things that I'm going to now today say. Firstly, Copernicus. You know what? The idea of the universe, according to religious texts, in any text, be it Islam or Christianity or Hinduism or any religion for that matter, the idea is that God created the universe. And in certain texts, for example, let's say Christianity, it is said that God created the universe in probably what, 7 days, something like that. And Islam also, in a similar way, I think certain number of days, I think 3-4 days or something like that. I'm not sure about the statistical numbers, but that's what the religious belief is. That's how universes come into being. And that is in so many days, in so many weeks or something like that. Now, of course, it's up to you to believe it. But obviously, they don't make any sense. Okay? But the thing is that religious beliefs are so strong, even in India also and in any other part of the world, that it has existed for such a long period, though most of its principles have been actually proved to be outdated. For example, let's say the idea of universal. Now, according to Christianity, as I was saying, universe has been made in 7 days. Now, that's just not possible. Why? Because the universe has actually evolved. So, let's say a few million years back, human beings were not even there on the planet. So, forget about 7 days and whatever other logic that is being used. So, when science started to establish its footing, they came in direct conflict with the religious extremist ideas of that time. अब वो ideas कितना strong होता था, मैं एक example दे रहा हूँ. When Copernicus did experiments, Copernicus, European की बात कर रहा हूँ, मैं Indian की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. When Copernicus did his experiments and came to the conclusion that it is the Earth which is moving around the sun and not the other way around. The video freeze on. Oh.
फिर से फ्रीज हो गया, फिर से हो रहा है। चलो, anyway, so Copernicus gave the idea that it is the earth which is moving around the sun rather the other way around, and that is sun moving around the earth. The thing is that earlier to Copernicus in Europe and Aryabhatta and others in India, because what we see is that we see the sun in one end, in the afternoon we see the sun at the top, that is above our heads, and then see the setting sun at the other end. Similarly, we see the moon at one end of the horizon in the evening, and then we see it at some other end in the morning. That is when rather sun rays start coming in. So, and also the stars, we see them going in one way. So what the belief was that it is the other things which is moving around the earth. Now that's what we see. So that's how the belief came into being. Though of course now we know and have scientific evidence that the belief is not true and the thing is much more complicated, isn't it? So we know the modern version of it. Now the problem is that earlier, that is prior to Copernicus, this was the belief that the earth is the center and everything is moving around it. Now Copernicus was suggesting it's not true. It's the sun which is at the center of the solar system at least, and the earth is moving around it. Now that is a conflict with the existing religious beliefs. And he was fearing so much, उसको इतना डर लगा था कि he didn't even publish his findings. उन्होंने पता है क्या किया? एक will लिखा. will मतलब होता है कि after my death what will happen करके हम लोग will लिखते हैं. तो उन्होंने will लिखा कि मेरे घर में इस कमरे में एक अलमीरा है, ठीक है? उस अलमीरा का चाबी की एक एनवेलप में है और वो एनवेलप इस अलमीरा के इस कबर्ड के इस जगह पे पड़ा हुआ है. उन्होंने विल में ये लिखा. एंड ही वाज विलिंग लाइक दिस दैट उस चाबी से अलमीरा खोल के मेरे ट्रीटाइज मींस द बुक व्हिच ही हैड रिटन ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल, कि उस समय मेरे मरने के बाद पब्लिश हो. नाउ दैट वाज हिज विल. इमेजिन करो कितना डरते थे. क्यों? क्योंकि अगर वो बुक पब्लिश करते तो ही वुड हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद आइडियाज ऑफ दैट टाइम, and then heaven would have fallen and everything would have been like disaster. तो उन्होंने इसलिए क्या किया? बुक पब्लिश नहीं किया. उन्होंने इस तरीके से बुक को पब्लिश करते हुए डॉज करके अपने मरने के बाद के लिए टाल दिया. इमेजिन करो, है ना? अब मरने के बाद एज यूजुअल पब्लिश हुआ तो देयर वाज अ फ्यूरोर कि अरे अच्छा. और एक प्रॉब्लम क्या था कि कोपरनिकस वाज सपोज्ड टू बी अ डिसेंटली रिलीजियस पर्सन. अब रिलीजियस पर्सन एक तरफ है और एक तरफ तुम उसी रिलीजन के जो बेसिक प्रोमाइसेस है या डिफरेंट आइडियाज है उसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो. तो ही कुड नॉट मास्टर ऑफ द करेज टू अपोज दोज आइडियाज एंड देयरफॉर ही अवॉइडेड बाय सेइंग कि मेरे मरने के बाद. नाउ यू माइट से somebody could have probably picked up that key and could have opened it up before his death also. But the thing is that in those times a will was supposed to be a very sacred document and was supposed to be opened only after death. और उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था क्या कि anybody opening somebody else's will before his death would be very ominous and would be very bad for the person and God would punish him and so on. तो ये सब आइडियाज उस समय थे. तो लोग किसी ने उसके विल जो है मरने के पहले खोले नहीं, because otherwise it would have been leaked and it would have come out in the public and then heavens would have fallen. ठीक है ना? तो इतना डरते थे, बताओ, उस समय scientific community against the religious obscurantism at that time. Then came Galileo. I am seeing Aryan Jain has written a comment, and that is Kepler stole ideas of Tycho Brahe. You know, Tycho Brahe has a very interesting history. I probably told you once, and that is he was one of the greatest. Tycho Brahe was one of the greatest astronomer without using telescope. वो टेलीस्कोप के बाद तो ऑब्वियसली स्पेस रिसर्च में या एस्ट्रोनॉमी में काफी डेवलपमेंट हुआ था, बट प्री टेलीस्कोप की इरा में टाइको ब्राहे वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम्स एंड ही हैड गिवन लॉट ऑफ रिसर्च आउटपुट एंड सो ऑन. चलो वो तो ठीक है, लेकिन उनका एक अलग इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साइड भी था. ही वाज अ स्वॉर्ड फाइटर आल्सो, स्वॉर्ड फाइटर, एंड ही वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. मतलब बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाते थे और गुस्सा आने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे. वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन.
और ऊपर से सोर्ड फाइटर यानी स्कैबर्ड में हमेशा सोर्ड रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, कोई मामूली सा लड़ाई हुआ था, कोई होटल में मामूली से लड़ाई हुआ था, और लड़ाई में एकदम से तलवार निकाल के एकदम से होता है ना शुरू हो गए। बाई चांस क्या हुआ कि जिसके साथ लड़ाई हुआ था वो भी सोर्ड फाइटर था, बाई चांस। अब जैसे इसने अपना सोर्ड निकाला तो उसने भी तुरंत अपना सोर्ड निकाल के वो भी चलाया। अब लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है। तो बाई चांस क्या हुआ, उसका जो सोर्ड था, so Tycho Brahe took his sword out, but by the time he could attack, I mean, तो दूसरे बंदे ने उसके पहले ही निकाल लिया और एकदम से उसके मुंह के सामने से स्वॉर्ड चला दिया। और मुंह के सामने से स्वॉर्ड चला है तो वो यहीं से गया एकदम से ऐसे करके, और उसके पूरे नाक जो है ना यूं कट करके फेंक दिया। इमेजिन करो एक पर्सन जिसका पूरा नाक कट के चुका है। अच्छा, आज के दिन में अगर ऐसे होगा तो वो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ जाता है, तो टेक सम टाइम, 6 मंथ्स और 1 ईयर अभी, बट जुड़ जाता है आज के दिन में। कईयों का देखना फिंगर और हैंड्स कट हो गया है मशीन से, और वो जुड़ के दे नॉट वर्किंग फुल्ली नॉर्मली, बट कम से कम डिसेंटली नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आज के दिन में ये पॉसिबल है, उस समय ये पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो नोज तो कट के गिर गया। अब धीरे धीरे वो हीलिंग हुआ तो वहां पे एक फ्लैट सा सरफेस हो गया। अब ऐसे फ्लैट सरफेस में तो बाहर निकलना मुश्किल है या नहीं? प्लस ही वाज अ पार्टी काइंड ऑफ अ पर्सन, वो पार्टीज में जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, वाज अ वेरी इन्वॉल्व पर्सन। तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक वुडन नोज बनवाया वुडन नोज, और उसको कलर कराया, बिल्कुल स्किन कलर जैसे कलर कराया, और फिर वो चिपका देते थे ठीक है ना, और कुछ some adhesive, I mean, and he would stick the wooden nose and attend parties and so on. So that was his history. So he was called as the scientist with the wooden nose. ठीक है ना? Anyway, that was Tycho Brahe. I was talking about Galileo. Galileo is called as the father of modern science. Okay, so we are talking about Galileo now. So we have already talked about Copernicus. We have talked about Tycho Brahe. Okay, and now we are talking about Galileo. Galileo is truly considered as the father of modern science. So Galileo was considered as the father of modern science. Now let's understand why is he considered the real father of modern science, जबकि गैलीलियो का अगर साइंटिफिक आउटपुट इतना था, टोटल आउटपुट, तो उसके ठीक बाद, उसके अगले ही 25-30 साल बाद न्यूटन का बर्थ हुआ था, तो न्यूटन का आउटपुट इतना होगा। गैलीलियो का अगर इतना है तो न्यूटन का इतना होगा। Yet Galileo is considered as the father of modern science. So let's understand why. Galileo from a very young age became very interested in science, and unfortunately was from a very poor background. So he could not study much because of his not having so much of money. I mean, तो घर में पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि नाइट टाइम पे, रात के टाइम ऑयल नहीं था तो लाइट जला नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे, वो चले जाते थे चर्च। अब चर्च देखो कैसे जाते थे। चर्च में क्या होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था, इवनिंग के टाइम प्रेयर्स होता था, अभी भी होता है। और उस प्रेयर्स के टाइम क्या होता है, चर्च में चारों तरफ कैंडल्स जलाए जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे कैंडल्स, उस जमाने की बात कर रहा हूं। और वो कैंडल्स 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा तक जलते रहते थे। लेकिन प्रेयर तो आधे 1 घंटे का होता है। तो पीपल यूज्ड टू गो इन द इवनिंग फॉर प्रेयर for half an hour, 1 hour, whatever prayer was there, and they would all come out. When everybody would come out of the church, Galileo used to enter the church. क्यों? पढ़ना है, तो अपना जो भी किताब थे वो सब लेके जाते थे, वहीं पे बैठ के पढ़ते थे, जब तक सारे कैंडल्स बुझ ना जाए। जब बुझ जाता था रात को 9 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम था, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग द टाइमिंग्स, ही वुड कम बैक टू हिज होम। सो दैट यूज्ड टू बी शेड्यूल। अब देखो कितना इंटरेस्टेड है एक बंदा, घर में रिसोर्सेज नहीं थे तो यूज्ड टू डू दैट इन द चर्च। ओ प्लीज चेक वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में कौन है? अच्छा, मंजिष्ठा। सो मंजिष्ठा इज मिसिंग आउट द स्टोरी पार्ट। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन से। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, अब एक दिन क्या हुआ कि काफी तूफानी हवा चल रहा था, बारिश का मौसम था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन इन द मीनवाइल क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आए चारों तरफ और सारे कैंडल्स बुझा दिए। कोई एक भी बचा नहीं। कोई एक बचा तो चलो उसी के नीचे बैठ जाते थे पढ़ने के लिए,
बट वो नहीं, सारे बुझ गए। ऐसे में हम होते तो बहुत खुश हो जाते, अरे वाह क्या बात है, आज तो मौज हो गया, आज तो बहाना मिल गया सॉलिड कि लाइट ही नहीं है, आज इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाला था मैं, देखो लाइट ही नहीं है, क्या करें, मतलब ऐसे बोलते ना। Now he could have also said the same thing कि चलो भाई आज तो लाइट नहीं, आज तो सॉलिड बहाना है, आज चलते हैं घर, है ना, कैसे पढ़ेंगे, लाइट ही नहीं है। बट ही थॉट इन अ डिफरेंट वे कि अरे यार आज का टाइम मेरा खराब हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं क्या कर सकता हूं, और अब अंधेरा भी धीरे धीरे होने वाला था, हुआ नहीं था बट देन होने ही वाला था। तो वो जो हवा चल रहा था ना, उसके चक्कर में जो शैंडलियर्स थे, कई सारे शैंडलियर्स होते हैं जो छत से लगा जाता है, वो सारे स्विंग कर रहे थे, है ना, हवा के चक्कर में। अब उन्होंने बोला, सोचा कि एक काम करता हूं, ये जो शैंडलियर्स है दे आर लाइक पेंडुलम्स, तो क्यों नहीं इनको स्टडी किया जाए। अब उनके पास कोई घड़ी तो नहीं था, टाइटन वॉच तो उन्होंने क्या किया, ये जितने भी शैंडलियर्स वहां पे हैंग करके वो सब स्विंग कर रहे थे, उनके टाइम पीरियड कैलकुलेट करने लगे। कैसे ना, मान लो शैंडलियर ऑसिलेट कर रहा है, सपोज 20 ऑसिलेशंस, 20 30 40 जो भी ले लो, वो तो टाइम पीरियड तो फिर 40 को डिवाइड भी कर देंगे अगर 40 ऑसिलेशन का, और टाइम निकाल रहे थे पल्स से। यहां पे ना पल्स होता है, इफ यू केयरफुली डू इट यू विल फील दैट आल्सो। तो वो क्या कर रहे थे, कागज में उन्होंने देखा कि कितने ऑसिलेशन है ना, 1 2 3 4, और इतने देर में पल्स गिन रहे हैं, 1 पल्स 2 3 4 कैसे करके जो भी। तो लेट अस से 40 ऑसिलेशन इज इक्वल टू सपोज 35 पल्स, कुछ ऐसे इसका पल्स है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुआ, उसके कुछ दिन पहले उनको पेंडुलम के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया। इंटरेस्टिंग, देखो पेंडुलम के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था कि अगर पेंडुलम का स्विंग कम होगा तो उसमें टाइम कम लगेगा, और अगर पेंडुलम का स्विंग ज्यादा होगा, देखो ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, तो इन दैट केस ज्यादा टाइम लगेगा ना। दैट वाज टॉट इन स्कूल। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस चीज को चेक कर लेते हैं। तो कभी हवा थोड़ा तेज बहता है तो स्विंग ज्यादा हो जाता है, फिर धीरे धीरे बाद में स्विंग कम कम हो जाता है। तो उन्होंने कम कम वाले के टाइम में टाइम पीरियड निकाला और ज्यादा ज्यादा वाले का भी टाइम पीरियड निकाला, एंड वाज शॉक्ड एक्चुअली। शॉक कैसे, उन्होंने देखा कि टाइम पीरियड तो सेम आ रहा है, यानी स्विंग ऐसे ऐसे हो पेंडुलम का या स्विंग ऐसे ऐसे हो पेंडुलम का, टाइम उतना ही लगता है। बट उनको तो स्कूल में तो कुछ और बताया जाता था, बताया गया था मतलब। ही देन बिकम वेरी सस्पिशियस। उनको लगा कि इतना फंडामेंटल चीज है, इतना सिंपल सा चीज है जो कि कोई भी करके देख सकता है, इसके ऊपर हमें गलत क्यों बताया गया। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि इसके मतलब ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें गलत बताते होंगे। And he started investigating everything that he had studied in science, and he found out many mistakes. वो एक दो तो बताए, बहुत सारा, ठीक है। Then he understood कि ये जो पूरा प्रोसेस है हम लोगों को पढ़ाने का और जो भी एजुकेशन का डिलीवरी, इसमें कुछ मेजर फ्लॉ है, and that he discovered at a very young age. And he was a little rebel kind of a person. वो भिड़ जाते थे एकदम, अगर बिलीव स्ट्रांग है ना, भिड़ जाते थे। अब पता क्या हुआ, उस जमाने में जो टीचर्स होते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, they were also from the religious community only. So the same person would be the father of some church also, and he would be teaching in some school also. So it was a dual role at that time of the society. आजकल नहीं है, जैसे मैं स्कूल में हूं, मैं कोई चर्च या कोई मंदिर या कोई मस्जिद के साथ अटैच नहीं। So I am a separate body. They are being run by other bodies. We don't have any connection. ये पहले ऐसे नहीं था। चर्च ही एक ओवरसी करने वाला था, एजुकेशन वगैरह उनके ही कंट्रोल में था। सो द पीपल यूज्ड टू बी मोस्टली कॉमन। वही चर्च में बंदा प्रेयर भी कराता था और सुबह पता चला जो है स्कूल में पढ़ा भी। तो उसमें डुअल रोल है। अब देखो एक प्रॉब्लम पता क्या होता है कि जरा सोचो लॉजिकली। सपोज आज तुमको पता चलता है कि मैं मार्केट में जाके झूठ बोलता हूं। सपोज तुमको पता चलता है कि मैं मार्केट में जाके झूठ बोलता हूं, कुछ कुछ करके दुकानदार को मैं कुछ गोली का देता हूं, और फिर कुछ जो भी आई डू सम हैंकी पैंकी आउट दे। सपोज तुमको पता चलता है, तो क्या तुमको मेरे पढ़ाए हुए चीज पे ट्रस्ट होगा? सोच के देखो जरा लॉजिकली। देखो मैं सही बताऊं, मैं गलत बताऊं, मैं झूठ बोलूं, मैं सच बोलूं, यहां पे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है,
लेकिन क्योंकि किसी दूसरे जगह पे तुमको पता चला कि मैं झूठ बोलता हूं या मैं हैंकी पैंकी करता हूं, तो देखना यहां पे भी तुमको शक होगा। इट्स नेचुरल। अब पता क्या होगा गैलीलियो को, कि उन्होंने सोचा कि यही बंदा मुझे स्कूल में तो गलत बताता है, तो चर्च में क्या बताता होगा, शायद चर्च में जो बता रहे वो भी चीज गलत होगा। देखो कैसे कनेक्शन हो जाता है। एंड ही स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग दैट ही स्टडीड इन स्कूल एंड अदर प्लेसेस। तो इनिशियली तो उतना रेबल नहीं था, बट विथ एज ही बिकेम अ रेबल एंड ही स्टार्टेड डिनाउंसिंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स एंड ही स्टार्टेड फाइंडिंग देम। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। उस जमाने में एक और बिलीफ भी था, क्या, कि अगर अगर तुम एक हल्के ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो वो धीरे धीरे गिरेगा, और अगर एक भारी ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो वो जल्दी गिरेगा। दिस वाज द बिलीफ। इमेजिन करो, कोई चेक ही नहीं करता था, जो भी बताया जाता था उसको तोते की तरह याद कर लेते थे। ही इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड इट वाज रॉन्ग। फिर उन्होंने सोचा एक काम करो, मैं सिर्फ जानूंगा कि ये गलत है, उससे काम चलेगा नहीं, मैं सबको बताऊंगा। तो ही डिड वन थिंग, ही मेड एन अनाउंसमेंट इन द इटालियन सिटी ऑफ पिसा। वहां पे एक टावर है जो कि बेंट था, आज भी बेंट है, बट देन अब उन्होंने नीचे पत्थर वत्थर डाल के उसके बेंडिंग को कम कर दिया, नहीं तो फिर आज के दिन में वो गिरना चाहिए था, बट उन्होंने फिर नीचे वो करके किसी तरीके से बैलेंस। बट द टावर इज वेरी टिल्टेड, इट इज वेरी विजिबल आल्सो। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने बोला भाई तुम लोग को सब शाम को फ्री हो ना, आज मैं कुछ मेजर दिखाने वाला हूं, सब आ जाना। अच्छा, उस जमाने में लोग भी वेला होते थे, खेती वेती करते थे सुबह, और शाम तक जो है सब फ्री, तो सब पहुंच गए, ज्यादातर लोग जो है पहुंच गए, भाई कुछ दिखाने वाला गैलीलियो, देखते हैं क्या दिखाता है। फिर उन्होंने वहां से अनाउंसमेंट शुरू किया, देखो मेरे हाथ में दो पत्थर है, ये देखो बड़ा पत्थर और ये देखो छोटा पत्थर, ये बड़ा पत्थर है, ये छोटा पत्थर है, अब मैं दोनों को गिराऊंगा। आप लोग सब स्कूल में पढ़ चुके हो, क्या बताया जाता है बताओ। तो किसी ने वॉलंटियर किया कि वो जो हल्का छोटा वाला पत्थर है ना वो धीरे धीरे गिरेगा, और जो भारी वाला है वो जल्दी गिर जाएगा। तो बोला चलो ठीक है, तुम बताओ क्या पढ़े हो तुमने, ना वो भी यही बताया। तो जितने लोगों ने बताया सबने यही बताया, वो जो छोटा वाला पत्थर है वो पहले गिरेगा, सॉरी बाद में गिरेगा, और जो भारी वाला वो पहले गिरेगा, वो जल्दी गिरता है। बोले चलो ठीक है, यही पढ़ा है ना तुम लोगों ने, तुम लोगों को पढ़ाया क्या, उन्होंने पढ़ाया ऐसे करके, अब मैं करके दिखाता हूं। तो उन्होंने दोनों पत्थर गिराया, और जब गिराया तो देखे कि दोनों इकट्ठे गिरे, जो डस्ट आता है ना, सोचा नहीं क्या हो गया। तो पीपल वर शॉक, क्या अरे बाप रे, हमने तो आज तक कभी चेक ही नहीं किया, जिस तरीके से गैलीलियो चेक करके हमें दिखा रहा है, तो पता नहीं कितने चीजें ऐसे गलत होंगे। सो पीपल आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग लाइक गैलीलियो ओनली, एंड सून इट हैपेंड लाइक दिस, कि लोग शाम को चर्च में धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों भाई, उनको लगा कि ये बंदा स्कूल में तो हमें गलत सलत बताता है, पता नहीं चर्च में क्या बताता होगा, गलत ही बताता होगा शायद। इनफैक्ट ये हुआ कि गैलीलियो जिस घर में रहते थे, गैलीलियो के घर लोग पहुंच जाते, गैलीलियो के घर के बाहर शाम को इकट्ठे हो जाते कि नहीं नहीं, हमें चर्च का बातें सुनना नहीं है, हमें आपकी बातें सुनना, आपके बातों में दम है, आप हमें प्रूव करके दिखाते हो। वो प्रूफ कुछ नहीं करते, कुछ बता देते हैं हमें। नाउ व्हेन सच अ थिंग हैपेंड, द चर्च फेल्ट कि ये तो हमारा ताकत तो खत्म हो जाएगा, एंड दे वर वेरी पावरफुल पीपल एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया, गैलीलियो को हेरेटिक डिसाइड कर दिया, वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। हेरेटिक मींस हु स्पीक्स अगेंस्ट गॉड, एसेंशियली इसका मीनिंग यही है। अब जब उन्होंने ट्रायल किया उसका गैलीलियो का, तो उन्होंने सजा दे दिया कि भाई इसका जेल होगा, करके गैलीलियो को जेल में डाल दिया। लेकिन लोग सड़क में आ गए कि भाई ये क्या मतलब है, प्रोटेस्ट करने, ये क्या मतलब है, ये बंदा तो हमें सही बताता है, प्रूव करके दिखाता है, हम खुद करके देख लेते हैं, आप लोग तो ऐसे कुछ नहीं करते हो। तो गैलीलियो कहां झूठ बोला, गैलीलियो क्या गलत काम किया, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो चर्च ने देखा ये तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, तो उन्होंने बोला एक काम करो, गैलीलियो को हम माफ करते हैं, लेकिन गैलीलियो को बाहर आना पड़ेगा, वो अपने मुंह बंद रखेगा, ये फालतू की बातें नहीं करेगा कि ये गलत है और वो सही है और ये लोग गलत बताते हैं ऑल। इससे जो है ना हमें बहुत ठोस पहुंचता है, भगवान के अगेंस्ट बातें करता है, वो कॉमन थीम था अभी, आज भी कई जगह है, भगवान के अगेंस्ट बात करो इसलिए मार दो ये बहुत आजकल भी है, अभी भी है कई कंट्रीज में। तो उनको घर में डाल दिया गया, घर के बाहर लॉक, वह तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन तो भी लोग नहीं माने, लोग शाम को उसके खिड़की के बगल में आ जाते थे, उसके यहाँ पे क्राउड आ जाते थे शाम को कि नहीं नहीं हम तो आप ही का सुनेंगे, हमें उनसे मतलब नहीं।
तो चर्च ने देखा तो अभी भी बाज में नहीं आ रहा, क्या करें? तो उन्होंने पता क्या किया, उनके सारे खिड़कियों को बंद कर दिया, खिड़कियों को बंद कर दिया। लेकिन तभी भी लोग नहीं रुके, खिड़की के बीच में से भी तो आवाज आता है ना थोड़ा सा। जब वो भी नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया, खिड़कियों को तोड़ दिया और वहां पे ईंटों का प्लास्टर करा दिया। पूरा उसके घर जो है काला अंधेरा में बैठे रहते, सिर्फ कोने में एक पाइप डाल के एक छोटा सा छेद बना दिया कि कहीं मरी ना जाए इंसान, है ना, अंदर घुट के ना मर जाए, सो दैट ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत सप्लाई होता रहे। तो इसके चक्कर में, यानी सजा देखो कैसे हुआ। ही यूज्ड टू सिट इन द एंटायर डे इन कंप्लीट डार्कनेस, अकेले बैठे रहते। सिर्फ उनके एक स्टूडेंट जिनका नाम है टॉरिसेल, ही वाज अलाउड इन हिज रूम। वो 4 बार या 3 बार आते थे खाना देने के लिए और प्लेट ले जाते थे फिर ये। तो गैलीलियो के जो दोस्त थे उन्होंने गैलीलियो को मशवरा दिया कि भाई क्यों इनसे पंगा ले रहे हो, छोड़ो ना, अपना जिंदगी जियो और जो भी अपना काम कर रहे हो करो, इनसे भिड़ने का क्या जरूरत है। तो चर्च ने बोला था नहीं, ये माफी मांगेंगे तभी हम छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। तो गैलीलियो ने बोला नहीं, माफी अभी नहीं मांगूंगा। तो उसके दोस्त ने समझाया कि भाई क्या फायदा है बताओ, जब ये काला अंधेरा में बैठ के क्या करोगे भाई, ऐसे में तो थोड़ा रिसर्च भी कर लोगे, कुछ कुछ काम भी करोगे तो साइंस का भी फायदा ही होगा। बोला नहीं, मैं तो सच नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्यों माफी मांगू। तो ही वाज ऑफ दैट काइंड ऑफ रेबल, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या ना, एक जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट इंस्पायर हुए, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। अब इमेजिन करो, एक बंदा जो कि इतना अच्छे अच्छे डिस्कवरीज करके गए, गैलीलियो इवन हैज मेड अ टेलीस्कोप आल्सो, गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं, इतना कुछ करके गए, लेकिन उनका सजा देखो क्या हुआ। इनफैक्ट पूरे दिन काला अंधेरे में रहते रहते आंखों का यूज तो हो नहीं रहा है, तो लास्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक शायद लास्ट के 10 साल, लास्ट के 10 साल ही वाज टोटली ब्लाइंड, बट ही स्टिल नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड कि भाई माफ कर दो, माफी, है ना, वो सब चीजें, नो, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो दैट्स हाउ ही एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड द फुटिंग्स ऑफ साइंस। तो ये इस चैप्टर का शुरुआती इतिहास। He only proposed the idea of gravitation. He was one of the pioneers of it. And the fact that the gravitational force is the product of two masses, ये गैलीलियो का ही प्रोपोजिशन था, ठीक है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ उन्होंने नहीं बताया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो बात की बात है, बट द फैक्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is proportional to the product of the two masses was actually proposed by Galileo. So therefore the chapter foundation, the gravitation foundation, was laid down by actually Galileo, then taken over by Newton. In fact, जरा हिस्ट्री में चेक करके देखना, जिस टाइम पे गैलीलियो का डेथ हुआ था उसी टाइम जोन में न्यूटन का बर्थ हुआ था। तो कई बार साइंटिफिक पार्लेंस में बोला जाता है कि द बेटन ऑफ साइंस was taken away from Galileo and given to Newton. तो साइंस को आगे बढ़ाने का काम गैलीलियो से न्यूटन के हाथ में आ गया। And of course, Newton is one of the greatest scientists that has been ever born. उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन न्यूटन का कैरेक्टर और गैलीलियो का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट, टोटल। गैलीलियो वाज दैट अनकॉम्प्रोमाइजिंग, नहीं हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे। न्यूटन वाज अ वेरी कनिंग कैरेक्टर, बहुत कनिंग कैरेक्टर था, बड़ा पॉलिटिशियन टाइप का कैरेक्टर था। अब न्यूटन ने, गैलीलियो का तो बाद में सबको पता चल गया, न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन लॉ डिस्कवर किया, डू यू नो एट व्हाट एज ही डिस्कवर्ड? न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एट द एज ऑफ जस्ट 23 और आई थिंक शायद 24। लेकिन पता क्या हुआ, उन्होंने पब्लिश नहीं किया उस लॉ को, उन्होंने उस लॉ को पब्लिश किया 18 साल बाद। क्या टेरर था, इमेजिन करके देखो। नाउ यू माइट से इसमें क्या है, इतना साल वेट क्यों किया, पब्लिश क्यों नहीं किया, पब्लिशर ढूंढ रहे थे क्या? The answer is no. There were two aspects of it. One was like this, कि उन्होंने देख तो लिया था कि गैलीलियो का क्या हाल हुआ था। उस जमाने में अगर तुम एक सवाल पूछो ना कि ये सन और अर्थ ये गाइडेड होके ऐसे ऐसे कैसे मूव कर रहा है, मतलब, तो डू यू नो व्हाट वाज द आंसर गिवन एट दैट टाइम? The answer given at that time was that this entire universe and its guiding motion, या guided motion, is because of God's will. ये भगवान का इच्छा है, will है, और इसी वजह से अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है। Now therefore you don't need to ask any question.
ये कोई भी अननोन क्वेश्चन का जो आंसर नहीं पता, उसका आंसर तो सबको पता है। फिर क्या? गॉड्स विल। व्हाई इज दिस ऑब्जेक्ट इफ आई लीव इट फॉलिंग डाउन? गॉड्स विल, है या नहीं? पानी को गर्म करते एवापोरेट करे, क्यों किया? गॉड्स विल। सो इट्स सच अ सिंपल आंसर। तो therefore at that time it was explained by God's will. Imagine करो। And what is Newton suggesting? ना 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 ना, God's will वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, वो नेचुरल फोर्स है, और उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे अर्थ गाइडेड होके सन के अराउंड घूम रहा है। अब इमेजिन करो कितना डिफरेंस हो गया। एक है कि गॉड्स विल है तो इसलिए ऐसे ही हो रहा है, यानी गॉड अगर उल्टा विल करते तो उल्टा होता। अब न्यूटन बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स से गाइडेड हो रहा है। और नाउ इमेजिन करो उस समय अगर न्यूटन एट द यंग एज ऑफ 23 ये प्रपोज किए होते तो शायद उनको भी गैलीलियो की तरह जेल में डाल दिया होता। उनका क्या ताकत है? 23-24 साल में उम्र में होता ही क्या दम इंसान का, वो फेमस थोड़ी थे। बट ही डिड नॉट डू दैट, ही वाज अ वेरी कनिंग पर्सन। उनके पास लॉ था, ग्रेविटेशन लॉ। उससे उन्होंने क्या किया, सारा कैलकुलेशन कर लिया कि वीनस कैसे और ये वो सब प्लैनेट के ट्रेजेक्टरी वगैरह कैलकुलेट कर लिया उन्होंने अपने मैथमेटिक्स से। और उससे उनको पता चल जाता था कि वीनस अगर आज यहाँ पे है तो कल वहां पे होगा, परसों वहां पे, नरसों वहां पे, 6 महीने बाद यहाँ पे, 3 साल बाद यहाँ पे। तो कैलकुलेशन से पता चल जाता है। एंड देन ही स्टार्टेड प्रेडिक्शंस, क्योंकि लॉ तो उनके पास है, लोगों को तो नहीं पता। ही स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। अच्छा, उस जमाने में क्या था कि एस्ट्रोनॉमी यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉबी एट दैट टाइम। तो लोग ना दिन में तो काम खत्म हो जाते थे, तो रात के टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो व्हाट वुड दे डू? दे यूज्ड टू डू नाइट स्काई वॉचिंग। तो बहुत लोगों का हॉबी होता था एस्ट्रोनॉमी। सो दे यूज्ड टू लुक एट द टेलीस्कोप, लुक एट द डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। दैट यूज्ड टू बी हॉबी एट दैट टाइम। एंड उस समय के, इवन जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हमारे जो न्यूज़पेपर आते थे ना, उसके लास्ट पेज में स्टार चार्ट्स आते थे। एवरी डे का स्टार, प्लैनेट का पोजीशन आता था। अब लोगों का हॉबी है नहीं, आजकल एस्ट्रोनॉमी कोई हॉबी रखता नहीं है, बहुत रेयरली एक दो जने रखते हैं। तो इस वजह से आजकल वो स्टार चार्ट देखना कोई भी न्यूज़पेपर कैरी नहीं करता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू गो टू द वेबसाइट्स व्हिच गिव अस द स्टार चार्ट्स। लेकिन मैं जब छोटा था तो लास्ट पेज में मैंने देखता था स्टार चार्ट्स आते थे। अब ट्रेडिशन खत्म हो गया इसलिए नहीं आते। तो न्यूटन के जमाने में स्टार चार्ट्स इज वेरी पॉपुलर फीचर इन बुकलेट्स, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ हिज एरा। उसमें क्या होता था कि जैसे अगर मान लो फ्राइडे का न्यूज़पेपर है, वो तुमको शायद देंगे पिछले मंडे का स्टार चार्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन। न्यूटन स्टार्टेड रिवर्सिंग इट। न्यूटन ये बोलने लगा कि देखो आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे वीनस शाम को 6 बजे 32 डिग्री एंगल पे नजर आएंगे। ही न्यू द कैलकुलेशंस। अब लोगों के अंदर होड़ लग जाता था, वो अगले फ्राइडे ना शाम को 6 बजे बिल्कुल 32 डिग्री पे टेलीस्कोप लगा के बैठ के देखते थे कि अच्छा न्यूटन ने जो बताया, देखता हूं इस बार सही है गलत है। एंड ही वुड बैंग ऑन सी, अरे वाह 32 डिग्री पे वीनस नजर आ रहा है, क्या गजब चीज है ना। फिर वो प्रेडिक्ट करते थे कि अच्छा अगले मंडे जो है ना ऐसे होगा, 3 महीने बाद ऐसे होगा, 2 महीने बाद ऐसे होगा, एंड सो ऑन। एंड पीपल यूज्ड टू बी वंडरस्ट्रक, अरे बाप रे बाप क्या गजब चीज है ये तो। People started believing कि न्यूटन is one kind of a God incarnation। इतना लोगों के अंदर ट्रस्ट भर गया न्यूटन के बारे में। इनफैक्ट लोगों का बिलीव पता है कैसे हो गया? लोग ये नहीं सोचते थे कि वीनस वहां पे होता और न्यूटन उसको प्रेडिक्ट करते ना। कुछ लोगों का ये बिलीव बन गया था कि क्योंकि न्यूटन बोला है कि फ्राइडे 32 डिग्री एंगल पे शाम को 6 बजे वहां पे वीनस नजर आएंगे, तो वीनस वहां पहुंच जाता है। इमेजिन करो, देखो कैसे अनसाइंटिफिक माइंड कैसे विश्वास पे लिप्त हो जाता है। तो लोगों को ये लगने लगा कि पूरा दुनिया में जो चीजें है ना ये न्यूटन के नक्शे पे चल रही, ऐसे लोगों के अंदर बिलीव होने लगा। यानी लोगों के मन में न्यूटन के बारे में भगवान से कम वो नहीं होते। They used to see Newton almost like some kind of a new incarnation of God। ये विश्वास हो गया था। Then Newton dropped the bombshell कि ये है लॉ, ये है ग्रेविटेशन लॉ। डिस्कवर किए थे 23 साल की उम्र में, पब्लिश किए थे ऑलमोस्ट 40 साल की उम्र में, 18 साल वेट किए। ठीक है, सो यू माइट से क्या इसी डर से वेट किए? ये डर एक पॉइंट था, एक और पॉइंट भी था, एंड दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। ये तो थोड़ा कनिंगनेस पता चलता है न्यूटन का। एक पॉजिटिव पार्ट भी था, इज दैट वो ना एक जगह पे अटक गए थे। उन्होंने बोला कि पॉइंट मास के लिए ये ग्रेविटेशन लॉ होता है, लेकिन वो कहां लगा रहे थे? सन के लिए।
सन और प्लैनेट्स वगैरह, दे आर नॉट पॉइंट मासेस, दे आर सॉलिड स्फीयर्स या लिक्विड स्फीयर्स या गैसियस स्फीयर, जो भी है स्फेरिकल है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज पॉइंट मास के लिए वैलिड है वो बड़े बड़े स्फीयर्स के लिए कैसे वैलिड हो रहा है। उसके लिए क्या होता है, ऐड करके देखना पड़ता है, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। याद रखना, न्यूटन के टाइम देयर वाज नो इंटीग्रेशन, न्यूटन इंटीग्रेशन वाला मेथड न्यूटन के टाइम पे नहीं था। इन दीज 18 years he actually developed the tools of integration, and then by using integration he could show, ये मैं भी क्लास में दिखाऊंगा, आज तो नहीं बट कभी और दिखाऊंगा, कि कैसे पॉइंट मास को लेके तुम सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर को प्रूव कर सकते हो कि फॉर्मूला कैसे होना चाहिए, वो मैं करके दिखाऊंगा। So that's what Newton did, and because there was no integration at his time, so he had to develop integration from scratch, and that took up so much of time. एक वो डर वाला तो चीज था ही कि मैं इतना यंग साइंटिस्ट हूं और मैं इतना रिवोल्यूशनरी चीज बता रहा हूं तो पता नहीं मुझे जेल में ना डाल दे, ये बात तो था। बट साथ में ही वाज अ परफेक्शनिस्ट कि नहीं, मैं तब तक पब्लिश नहीं करूंगा जब तक सारा चीज मैं अच्छे से प्रूव ना करूं। बस दैट इज व्हाट साइंस ऑल अबाउट, साइंस कैन नॉट लीव एनीथिंग टू कंजेक्चर। तो उन्होंने जब प्रूव किया इंटीग्रेशन यूज करके, तब कॉन्फिडेंटली उन्होंने कंप्लीट जो है प्रेजेंटेशन किया इन हिज बुक दैट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। In that he presented his entire idea of gravitation and also other laws as well. ठीक है ना? Now that was Newton. So therefore Newton is a very good character, है ना? Krish has asked कि रियल लाइफ में तो हेवियर थिंग ही पहले गिरते हैं, तो गैलीलियो को क्यों नहीं गिरे? देखो, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता कि हेवियर थिंग पहले गिरता है। इट इज जस्ट दैट इफ यू टेक अ बिट ऑफ पेपर एंड स्टोन, तब स्टोन पहले गिरेगा, पेपर बाद में गिरेगा। वो इसलिए क्योंकि पेपर के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज एयर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जबकि पत्थर में उतना एयर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। पर अगर दो पत्थर लोगे, एक मान लो मीडियम साइज का और एक थोड़ा सा बड़ा साइज का, वो दोनों देखना हमेशा इकट्ठे गिरेंगे। ये तो तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग उसी प्रोपोर्शन में एयर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। कागज में प्रोपोर्शनली एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कागज का टुकड़ा और पत्थर में अगर करोगे तो पत्थर पहले गिरेगा, कागज का टुकड़ा बाद में गिरेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, एक बीबीसी का यूट्यूब वीडियो है, जस्ट टाइप बीबीसी एक्सपेरिमेंट वैक्यूम फ्री फॉल, इस तरीके से कुछ टाइप करके देखना 4-5 मिनट का वीडियो है। उसमें उन्होंने पता है क्या किया, एक बड़े से उन्होंने कमरा बनाया, बड़ा सा, मतलब क्वाइट ए फ्यू फ्लोर्स, सारा एयर टाइट बनाया ऐसे करके, और उसको इवैक्यूएट किया पूरे एयर को, और एकदम ऊपर एक पत्थर और एक फेदर रखा। तो पहले जब हवा भरा हुआ है कमरे में, तो दे डिड द एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या हुआ, फेदर आराम आराम से गिरेंगे ऐसे करके। सो दैट्स हाउ द फेदर विल फॉल एंड द स्टोन विल फॉल फास्ट। लेकिन उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को इवैक्यूएट करने के बाद किया, और ये देखना YouTube में इसका वीडियो अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट कि दैट समबडी प्लीज डाउनलोड दैट वीडियो एंड शेयर इट इन द ग्रुप, अगर मिल जाता है तो। आई एम श्योर मिल जाएगा अगर सर्च करोगे तो। उसमें उन्होंने दिखाया कि एक फेदर और एक पत्थर अगर इवैक्यूएटेड रूम में गिराओगे तो दे फॉल एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। ये बिलीव होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज अ फैक्ट, यू कैन सी इट इन द वीडियो आल्सो। उन्होंने दोनों करके दिखाया, हवा भरा हुआ है उस केस में दिखाते कि फेदर धीरे धीरे गिरता है, और इवैक्यूएट करने के बाद दिखता है कि पत्थर और फेदर इकट्ठे गिरता है। यू कैन सी एंड एंजॉय द एक्सपेरिमेंट आल्सो। बट एनीवे, लेट मी टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ न्यूटन। न्यूटन के एक दूसरा साइड भी था। मैंने बोला ही वाज अ वेरी कनिंग पर्सन। इन द मीनवाइल क्या हुआ था, जब वो कैलकुलस डेवलप कर रहे थे, ही वाज क्वाइट अ फ्यू इयर्स इनटू इट, फ्यू इयर्स मींस 4, 5, 6 इयर्स हमें। इन द मीनवाइल उसी टाइम जोन में there was another scientist working on calculus, and that was, you know, who is called as the father of calculus. अब वो ठीक है, अब वो जर्मनी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना थीसिस, मतलब जो काम कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स को दिखाया कि देखो ये सब मैं कर रहा हूँ, नया चीज मैं कर रहा हूँ, कुछ। अब उस समय तो कैलकुलस नाम नहीं था, जो भी नाम था, मतलब उस समय कुछ नाम तो नहीं था। इट वाज लाइक, देखो जरा। तो उनके फ्रेंड्स ने बोला, भाई देखो ये तुम जो काम कर रहे हो ना, ये कुछ ज्यादा हाई फाई है, हमें तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन एक सजेशन दे सकते हैं। क्या? ये सारा चीजें
सारा चीजें न्यूटन को भेज दो, न्यूटन को अच्छे से लिख के फेयर करके, है ना, न्यूटन को भेज दो, लेट हिम इवैल्यूएट एंड ही विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड कमेंट ऑन इट। चलो अच्छी बात है, तो उन्होंने सारा वो बनाया अच्छे से लिख के एंड देन सेंड इट टू न्यूटन। जब न्यूटन के पास डॉक्यूमेंट पहुंचा, और याद रखना ये कोई व्हाट्सएप का जमाना नहीं है, न्यूटन के पास डॉक्यूमेंट पहुंचने में लग गया महीने 1.5 महीने। क्यों भाई, उस जमाने में डाकिया सिस्टम ऐसे ही था, पैदल जाते थे, घोड़े से जाते थे, यू नो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो क्या हुआ कि न्यूटन के पास जब पहुंचा डॉक्यूमेंट्स, ही सॉ, अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि वो भी कैलकुलस पे काम कर रहे थे एंड इवन ही वाज आल्सो डूइंग ऑन कैलकुलस ओनली, वो जो जर्मनी मैथमेटिशियन। अब क्या हुआ कि न्यूटन को लगा कि यार ये तो मेरे आगे चला जाएगा, ये तो मेरे आगे चला जाएगा। तो ही रोड बैक टू हिम कि भाई ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा जो है काम अच्छा है, मतलब फर्टाइल माइंड है, माइंड बहुत शार्प है, लेकिन जिस एरिया पे काम कर रहे हो ना, इसका कुछ फ्यूचर नहीं। इस एरिया को चेंज कर लो, कुछ और एरिया पे काम करो, तुम्हारा मैथमेटिकल ब्रेन बहुत शार्प है, मुझे इससे पता चल रहा। तो जब ये पहुंचा उसके पास, तो उसने छोड़ दिया ये काम, उसने कुछ और काम करने लगे। कुछ महीने बाद, कुछ मंथ्स बाद, दोनों के कॉमन फ्रेंड उससे मिला, ठीक है ना, दोनों के कॉमन फ्रेंड उससे मिला और उससे पूछा भाई आजकल क्या कर रहे हो, है ना। उस समय तो कुछ ये सब चीजें कर रहे थे और तुम न्यूटन को भेजने वाले थे, तो उनका क्या जवाब आया। तो इन्होंने बोला कि हाँ मैंने न्यूटन को भेजा था और न्यूटन ने फिर मुझे एक लेटर भेजा, ये देखो वो लेटर। तो बोला दिखाओ क्या लेटर है भाई। तो उसमें न्यूटन ने लिखा था कि वही सब चीज की लाइक ये एरिया कुछ फ्यूचर वाला है नहीं, तो इसको छोड़ दो, तुम कुछ और एरिया पे काम करो। तो इसलिए मैंने वो सारा पैक करके रख दिया, किताब सॉरी जो भी लिखा था वो सब रख दिया बॉक्स में, अब मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो वो जो कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने उनको बोला भाई ये क्या चक्कर है, मैं अभी कुछ ही दिन पहले मिलके आया हूँ न्यूटन से, वो तो पूरा दिन उसी पे लगा हुआ है, दिन रात उसी पे लगा हुआ है, काम किए जा रहे हैं ऑल, ये तुमको क्यों रोक दिया उन्होंने। तब उनको चाल समझ में आया समझ रहे हो ना, तब उनको चाल समझ में आया और उन्होंने फिर से काम शुरू किया। और इसलिए आज के दिन में फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन को नहीं माना जाता, जबकि न्यूटन ने बिना कॉपी किए, he did not copy it from anybody, he developed with his own mind। लेकिन वो ये कि फादर ऑफ कैलकुलस नहीं बोला जाता, क्यों, क्योंकि वो जो जर्मन मैथमेटिशियन थे उनका काम काफी आगे था, इट वाज ऑफ मोर हायर स्टैंडर्ड एंड देयरफॉर फादर ऑफ कैलकुलस से भी न्यूटन वंचित हो गए। फादर ऑफ साइंस भी नहीं हो पाए क्योंकि वो गैलीलियो को दे दिया गया, he discovered calculus also on his own without copying, mind you। वो तो बाय चांस बाद में उसको डॉक्यूमेंट कोई भेज दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, बट ऐसे नहीं था। he developed calculus on his own, yet he is not the father of calculus because he was little lower in his standard, I mean थोड़ा बेसिक वाला था, और जो दूसरे मैथमेटिशियन जर्मन वाले थे वो काफी एडवांस कैलकुलस तक ले। नाम क्या था? हाँ हाँ उनका नाम क्या था? मैंने बताया था शायद। So Leibniz was the German mathematician and he is called as the father of calculus। जबकि लिबनिज इंडिपेंडेंटली अलग से डेवलप किया और गैलीलियो बता रहा, न्यूटन ने भी अलग से डेवलप किया, लेकिन वही बात है कि आप मानो लिबनिज यहां तक डेवलप किया, गैलीलियो सॉरी न्यूटन यहां तक डेवलप किया, तो ऑब्वियसली फादर ऑफ कैलकुलस फिर लिबनिज को ही नाम दिया जाता है रादर देन न्यूटन, ठीक है ना। सो दोस वर लिटिल शेड्स ऑफ ग्रे एज फार एज न्यूटन इज कंसर्न। न्यूटन के शेड्स ऑफ ग्रे में एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, या दो एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में पता क्या होता था कि अगर कोई फेमस पर्सन होते थे ना, उनको कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देते थे। तो न्यूटन को एट द एज ऑफ आई थिंक अराउंड 44-45 उनको एक प्रोविंस का गवर्नर बना दिया, इंग्लैंड का एक प्रोविंस का गवर्नर बना दिया कि भाई तुम तो बहुत बड़ा इंसान हो तो गवर्नर बन जाओ। लेकिन वो बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि गवर्नर का मतलब समझ रहे हो ना, वो डे टू डे लाइफ में सब उलझ जाता है इंसान। किसी के नल में पानी नहीं है तो किसी के घर में कुछ दिक्कत है, किसी के वहां बाढ़ आ गया तो किसी के यहाँ पे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो ये सब सॉल्व करना तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो इसलिए क्या हुआ, आफ्टर 45 न्यूटन ऑलमोस्ट गिव अप साइंस। जबकि साइंस में माना जाता है कि 40 से लेके जो 55-60 का पीरियड होता है, दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड इन साइंस, क्योंकि उस समय IQ प्लस एक्सपीरियंस दोनों का समन्वय होता है और उससे आउटपुट ज्यादा अच्छा आता है। दिस व्हाट इज साइंस कंसीडरिंग।
तो उसके बाद तो उन्होंने साइंस ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया। तो इवन देन ऑल्सो he had given so much of output. He is of course one of the greatest scientists ever born, I mean, and very meticulous and very hard working person also. पर उनको वो जो गवर्नर बना दिया वो बहुत गलत डिसीजन था. Otherwise maybe science would have got a little extra push. But anyway, हिस्ट्री को तो बदलना नहीं जा सकता है. एक और चीज मैं कहना चाहूंगा इज दैट थोड़ा सा नेगेटिव शेड ऑफ न्यूटन, आई मीन इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, थोड़ा सा नेगेटिव शेड कि देखो न्यूटन लॉ का है क्या, तुम लोग 9th में पढ़ा हुआ है. न्यूटन लॉ है F इज इक्वल टू G m1 m2 by r square. अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, that the force of gravity should be equal to या proportional to the product of the masses. This idea was given by Galileo. ठीक है, that सुनो, that this force should be inversely proportional to the square of the distance. ये जो था, this was given by रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे. और सुनो, जो कैपिटल जी है जो कि तुम लोग जानते हो 6.67 × 10⁻11, उसका वैल्यू दिस वाज गिवन बाय कैवेंडिश आफ्टर डेथ ऑफ न्यूटन. इमेजिन करो, यानी न्यूटन के जमाने में कैपिटल जी का वैल्यू किसी को नहीं पता था. ओनली प्रोपोर्शनलिटी वाज नोन एट दैट टाइम. बट कैपिटल जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है या जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है वो फाइंड किया था बाय अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैवेंडिश. बाय द वे, कैवेंडिश वाज दैट साइंटिस्ट जिनके लेबोरेटरी आज भी है इंग्लैंड में. तो कैवेंडिश लेबोरेटरी से नाम है. और उस लेबोरेटरी में काम करने वाले साइंटिस्ट ने आज तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता. सो दैट वाज द स्टेचर ऑफ द कैवेंडिश लैब. तो ही वाज द वन हु एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. अब बताओ, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये गैलीलियो का देन है, ये हुक का देन है, ये कैवेंडिश का देन है, और ये हो गया पूरा न्यूटन. थोड़ा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि सारा पार्ट्स तो किसी और का कंट्रीब्यूशन है? बट एक्चुअली यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ? देयर आर टू रीजंस. रीजन नंबर 1 इज ऑफ कोर्स न्यूटन डिड इट एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने प्रूव किया था, बाकियों ने प्रपोजल दिया था, प्रूव नहीं किए थे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली एक प्रोटेस्ट नोट भेजे थे कि अरे ये जो आइडिया न्यूटन बता रहे हैं तो मेरा आइडिया है. तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, न्यूटन वाज एट दैट टाइम ए वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम मत रखो, लेकिन कम से कम एक फुटनोट में तो लिखो कि भाई हाँ, इस वाले पार्ट के लिए आई गिव सम क्रेडिट टू हुक आल्सो. कहीं फुटनोट में तो मेरा नाम डाल दो. न्यूटन वाज अ वेरी बिग ईगोइस्ट. उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है कि मैं इस साइंटिफिक बॉडी का हेड हूं, और याद रखना मैं वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हूं, मेरे नीचे मतलब मेरे ऊपर अभी इस वक्त कोई नहीं है. अगर कोई नाम मेरे अलावा इसमें दिया जाएगा तो मैं इस बॉडी के हेड से रिजाइन दे दूंगा और मैं पैरेलल बॉडी खुद खड़ा करूंगा. पूरा धमकी. तो सबने बोला अरे भाई छोड़ो, अगर तुम इस बॉडी को छोड़ के दूसरा बॉडी बनाओगे तब तो हमारा बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तुमको तो दुनिया भर के लोग जानते हैं, है या नहीं? सो दे फेल्ट कि चलो ठीक है, अब क्या करें. So therefore Hooke's name was not included, though actually he deserved to be included. So that was the negative shade of Newton again. अब ठीक है, that was his stature. लेकिन एक चीज था is that at that time Newton was actually almost considered as a demigod. लोग इटाली से, फ्रांस से, जर्मनी से, इवन इंग्लैंड के कोने कोने से, you know, they used to go to see him once in life. और वो भी कैसे see कि जैसे मान लो न्यूटन अपने लॉन में बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो पता चला कि जर्मनी से कोई बंदा आया है, पैदल से आया है, घोड़े से आया है, नाव में ट्रैवल करके आया है, समुद्र को पार करना पड़ता ना इंग्लैंड जाने के लिए, वो सब करके आया है. और न्यूटन के घर के बाहर ऐसे देखा उन्होंने कि अच्छा ये है न्यूटन, मेरे जिंदगी तो धन्य हो गया, मैंने न्यूटन का दर्शन ले लिया अपने जिंदगी में. सो दे डिड नॉट इवन मीट न्यूटन, बस दूर से देख लिया ना, गेट के बाहर से देख लिया, अच्छा ये न्यूटन है, चलो भाई ठीक है. एंड दे यूज्ड टू गो बैक. पता चला 1.5 महीने लग गए उसको आने में और 1.5 महीने जाने में. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए पिलग्रिमेज. आज के दिन में ऐसे लोग कोई नहीं है.
जिसके लिए इतना लोग जो है दूर दूर से आके सिर्फ दर्शन लेके चले जाएंगे। आजकल वो भगवान देवी मूर्तियां छोड़ के आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्सन लाइक दैट। तो दैट वाज हिज नेचर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो न्यूटन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल बॉर्न एंड आल्सो यू कैन से लिविंग एट हिज टाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो टू यू दैट वन पर्सन इज नॉट गुड एट एवरीथिंग। उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स के बीच में दो चार नेगेटिव भी थे। तो ठीक है, आई थिंक इतना तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। नाउ दैट वाज हाउ ग्रेविटेशन लॉ केम इनटू बीइंग, फाइन। तो ये मैंने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इज दैट कि कैसे साइंस धीरे धीरे रिलीजियस आइडियाज के साथ लड़ाई करके आगे बढ़ के आज अपना फुटिंग बनाया। नहीं तो आज भी हम लोग यही बोलते कि अर्थ क्यों घूम रहा है सन के अराउंड, न गॉड्स विल। आज भी हम लोग यही आंसर देते, बट कुछ साइंटिस्टों ने माना कि नहीं, हम इसको तो नहीं मानेंगे, हम इसके पीछे नेचुरल लॉ को डिस्कवर करेंगे। और आज हम लोग ग्रेविटेशन नहीं, उसके आगे बहुत बढ़ चुके हैं और साइंस का गति अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो एक नोट पे आज का क्लास एंड करूंगा इज दैट, अब जैसे कोरोना क्राइसिस है ना, अब इस कोरोना क्राइसिस में क्या किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी चर्च के फादर या किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा है कोई सोल्यूशन देते हुए? नहीं देखो। अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साइंस ही देने वाला है या नहीं? So therefore science has no doubt has its footing, but ठीक है, we are still to some extent religious. I am not. I don't have any religion and I don't believe in any of these religions because I find them totally unscientific. उसमें जो beliefs and जो भी चीजें बताया जाता है they are totally unscientific and out of tune. but ठीक है, क्योंकि बचपन से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो लोग विश्वास करते हैं। It will not go overnight. But yes, there are many people like me who are silent but non-believers, and I'm sure these numbers will go on increasing generation wise. तो शायद 200, 300, 400 साल बाद मेरे जैसे कोई अगर ऐसे ही कोई क्राउड में डिस्कस करेंगे, तो I'm sure the environment will be pretty different at that time. 1000 साल पहले तो everything used to be religious only. Everything. चाहे खाना खाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ religious part होगा, चाहे कहीं मिलने जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, बाहर जाओगे, नहीं जाओगे, सब रिलीजियस से ड्रिवन होता था। आजकल तो उतना नहीं है, तो थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन द वे। तो माय बिलीफ इज दैट आफ्टर फ्यू सेंचुरीज इट विल बी साइंस व्हिच विल बी एक्चुअली डिसाइडिंग द बेसिक आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस। चलो आज का क्लास हमने हिस्ट्री के लिए डिवोट कर दिया। तो आई होप I won't say it was an effective class. I hope it was a class where you came to know how science actually established its footing and how we as individuals can bring changes in his own level. सबको प्राइम मिनिस्टर मोदी बनने का जरूरत नहीं है, और ना ही सबको कोई बाबा रामदेव बनना है या कोई यूएस के प्रेसिडेंट बनना है ट्रम्प। सब अपने अपने जिंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चेंजेस के लिए वर्क कर सकते हैं अपने जिंदगी में, अपने छोटे लेवल। दैट्स व्हाट प्रोबब्ली वी ऑल कैन डू, ठीक है ना। चलो, विद दैट मैसेज लेट्स एंड द डिस्कशन हियर। टुमारो ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स नो स्टोरी। टुमारो we will do gravitation only, so we will start with the discussion on gravitation in its mathematical sense, plus कुछ चीजें मैंने बताया था calculus and all, so we'll take those aspects as well, ठीक है ना। तो कल के क्लास में फॉर्मली जो है ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हिस्ट्री कम साइंस के लिए डिवोट कर दिया। तो we will meet again tomorrow with agenda of actual oh there is something here, कुछ ऐसे हिस्ट्री साइंटिफिक बुक्स बता दो, इंटरेस्ट आ गया आज से। यू नो व्हाट, अभी वो सब छोड़ दो। कभी कभी जैसे टाइम मिलता है ना, हम लोग नेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं, बहुत कुछ सर्च करते रहते हैं, कुछ ये देखते हैं, वो देखते हैं, कभी आईपीएल तो कभी कुछ, कभी ये भी एक सर्च कर लो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस। कभी ये भी सर्च कर लो, तो देखना कुछ 2-4-5 मिनट का वीडियो मिलेगा। तो जब उसको देखोगे तो उसमें देखना 5-6 चीजें बताएंगे, किसी में गैलीलियो के बारे में बताएंगे, तो कोई किसी और के बारे में बताएंगे। देखना उससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर उसके बारे में वीडियो सर्च करो, तो इट विल बिकम ए आउटवर्ड सर्च। 1 से 5 चीजें सर्च करोगे, 5 से 25, 25 से 125,
देखना ये ब्रेड बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं होता है, क्यूरियोसिटी हैज नो लिमिट्स। इट इज जस्ट दैट स्पार्क which starts with that 1 and then becomes 5, 25, 125, 625 and so on, 3, 125 and so on. तो ये एक शुरुआत है, तो maybe you can make a start today itself. Just search history of science and you will get a lot of fascinating material in the net also and many other aspects also. Chalo, with that note, let's put an end here, है ना? We will put an end here. We will carry on tomorrow. Till then, enjoy your time. ठीक है, आज के लिए इतना ही. Thank you, sir. Thank you. Okay, बेटा. Thank you and have a good day.